Hello students, welcome back to my channel after a long time, and today we're gonna solve exercise 5.1 of class 9 chapter 5 Euclid's geometry. And last class हम लोग ने Euclid's geometry का सब postulates and axioms हम लोग ने complete कर लिया था, and आज के class में we're gonna see some all the exercise of Euclid's geometry. Okay, so let's start. So हमारा first ये true and false है, इसमें we also need to give an region. ये जो हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करेंगे इसमें मुझे रीजन भी देना पड़ेगा कि अगर ट्रू हुआ तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ ट्रू का क्यों ट्रू है, एंड फॉल्स हुआ तो क्यों फॉल्स है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इफ इट इज सिंगल पॉइंट, राइट. अगर सिंगल पॉइंट है, वी नो दैट यहाँ से तो मल्टीपल लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास टू अ सिंगल पॉइंट, राइट. Infinite number of line can pass to a single point, so that means statement is false because we know that infinite number of line can pass to a single point. So my answer is false. Reason? What is the reason? Infinite number of lines can pass through a single point. So first number का that's why it is false because reason ये है कि infinite number of line can pass through a single point. Okay, second says that there are infinite lines which can pass through two distinct point. अगर हम लोग दो distinct point करेंगे, if it is A and B, how many lines you can pass through this? Only one line can pass through these 2 points, right. हम लोग कोई लाइन को इस तरह से नहीं ले जा सकते, we cannot produce or pass line in that way. So that means only one line can pass through these two distinct points. So reason is that, what will be the reason? So answer is false. And what is the reason? So now the first 4 number question we have here. If two circles are equal, then their radii are equal. It says that अगर दो सर्कल हम लोग ने यहाँ ड्रॉ किया, दो सर्कल with center A, another circle with center B. बोला है टू सर्कल आर इक्वल. अगर दो सर्कल इक्वल है तो दोनों का रेडिया इक्वल होगा. दो सर्कल इक्वल तब होगा, ऑब्वियसली ये दो सर्कल इक्वल तब होगा जब दोनों का रेडिया सेम होगा, तभी तो होगा ना. अगर ये मैं 5 सेंटीमीटर मानूँ, अगर ये मैं 5 सेंटीमीटर मानूँ, तभी जाके ये दो सर्कल इक्वल होगा. तो अल्टीमेटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर दो सर्कल इक्वल होगा तो उनका रेडिया ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा. सो आंसर इज माई ट्रू. वी नो द रीजन, राइट, बिकॉज two circles are equal, so ultimately their radii are equal. Then reason, two equal circle will always have same radii. So now we have 5 number. It says that in this figure it says that AB is equals to PQ, and it says that PQ equals to XY. So then AB is equals to XY. हम लोग ने एक्सिम्स पढ़ा था, उस टाइम में देखा था the things which are equal to one another is equal to, अगर ये दो postulates में ये लिखा गया था the things which are equal to one another, right, equal to each other, they are equal to one another too also. अगर if AB equals to PQ, and he also says that AB is equals to PQ, and he says that PQ is equals to XY. हम लोग का पोस्टुलेट में लिखा गया था थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर. ये दो इक्वल टू ईच अदर होगा तो ये और ये भी इक्वल होगा अल्टीमेटली. सो दैट मीन्स वी नो दैट here we have PQ, here we have PQ, that means AB is equals to XY. So proof. We have used axioms 1. I believe you have understood this.
रीजन भी लिख देता हूँ. नाउ अब हम 2 नंबर का देखेंगे. इसमें तो क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिए. द बोर्ड इज़ सो स्मॉल दैट आई कुड नॉट राइट इट डाउन ओवर हियर. सो इसमें मुझे आई नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस फॉलोइंग थिंग्स. आई हैव ऑलरेडी रोट definition of these terms: the parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius of a circle, and one more is there. पर इसमें definition के साथ साथ we also need to write some undefined terms. Undefined terms means like जो टर्म्स को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पहले फर्स्टली, राइट? बिकॉज ये पोस्टुलेट्स या ये ज्योमेट्री तो यूक्लिड ने लिखा था सो मेनी मतलब बहुत साल आगे, जब पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट line, a point, plane, intersection. They did not know anything about that. So उनके लिए राइट, उनके लिए मुझे कौन सा टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राइट? सो अभी हम लोग देखेंगे. फर्स्ट हमारा आया पैरेलल लाइंस. वी ऑलरेडी नो दैट parallel lines are those lines which never intersect to each other, and that means they are always parallel. They will never intersect to each other. इस तरह का लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप, सॉरी, दे नेवर विल मीट, एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं करेंगे. उस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं. और यहाँ मुझे क्या टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा पहले. सी ओवर हियर, फर्स्टली आई नीड टू डिफाइन लाइंस क्या है, लाइन क्या है मुझे बोलना पड़ेगा. एंड इंटरसेक्ट क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं ना. तो मुझे ये दो टर्म को मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा while writing the parallel lines. Okay, so now we have another one, the perpendicular lines. We already know that, right? Perpendicular lines are those lines which may forms a right angle to each other. उस तरह का लाइन को हम लोग perpendicular lines बोलते हैं. So two lines lying on the same plane said to be perpendicular when they are at right angle to each other. जब दो लाइन, इस तरह का दो लाइन जब एक दूसरे के साथ perpendicular बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, इस तरह का लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं. फॉर इफ इट इज लाइन ए, इफ इट इज लाइन बी, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी. ये हम लोग परपेंडिकुलर साइन इस तरह से लेते हैं, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी लाइन. सो बट इसमें क्या टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा. फर्स्टली आई नीड टू डिफाइन द लाइन्स क्या है, राइट? वो प्लेन क्या है, राइट? प्लेन क्या है? जिस प्लेन में, दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन सरफेस है जिसमें हम लोग ने वॉट एवर हैव रिटन ओवर हियर. सो ये प्लेन हुआ, लेंथ एंड ब्रेथ होता है प्लेन में, राइट? सो ये प्लेन हुआ, प्लेन सरफेस में आई हैव रिटन परपेंडिकुलर लाइन दिखाया. और मुझे डिफाइन करना था, क्या टर्म डिफाइन करना था? लाइन डिफाइन करना था, प्लेन डिफाइन करना था, एंड परपेंडिकुलर डिफाइन करना है. एंड एंगल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंगल भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कि मुझे बोलना पड़ेगा कि इस तरह का एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, इससे छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट? सो ये टर्म, ये चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राइट? तो ये इसमें हम लोग ने ये देखा. व्हेन वी कम टू द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में फिर से लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. एक लाइन का एक पार्ट है जिसका डेफिनेट लेंथ होगा. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा लाइन था, ये बड़ा सा लाइन का मैंने ये दो पार्ट लिया, ए बी, लाइक 2 सेंटीमीटर फिक्स डेफिनेट लेंथ है, एंड इट हैज़ सम फिक्स पॉइंट ऑल्सो, ए एंड बी. इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं. तो लाइन सेगमेंट समझाते वक्त पहले मुझे लाइन क्या है समझाना पड़ेगा, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या है समझाना पड़ेगा, उसके बाद ये पॉइंट समझाना पड़ेगा, पॉइंट क्या है. सो दीज आर द थिंग्स दैट फर्स्टली नीड टू डिस्कस्ड, फर्स्टली नीड टू डिफाइन आफ्टर बिफोर गिविंग अ डेफिनेशन. So we have another one, radius of a circle. Radius of a circle का मतलब क्या है? Distance from the center of the circle to the point on the circle is called radius of circle. मतलब radius of circle, I'll rub this one, यहाँ पर लिखता हूँ radius circle के लिए. Radius नीचे है definition, ऊपर में इसका example लिख रहा हूँ. Radius of circle, for example, this is a circle having point center O and this is A, point A.
सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इसका रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। अब इसमें टर्म क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आई नीड टू डिफाइन द सेंटर, सेंटर क्या है, राइट, एंड पॉइंट क्या है डिफाइन करना पड़ेगा, रेडियस क्या है डिफाइन करना पड़ेगा। दिस आर द थिंग्स राइट विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्टली। सो हम लोग ने 4 नंबर दिखा, विल सी द 5 नंबर नाउ। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे 2 पोस्टुलेट्स आर गिवन, 2 पोस्टुलेट्स दिया गया है, पर ये 2 पोस्टुलेट्स वो पोस्टुलेट्स नहीं है जो हम लोग ने आगे पढ़े थे, जो मैंने आपको दिखाया था पोस्टुलेट्स, वो पोस्टुलेट्स के अंदर नहीं आता, पर विल सी कि सम पोस्टुलेट्स दिया गया है। ओके, फर्स्ट बोलता है गिवन एनी 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये बताया गया है, फर्स्ट में ये बताया गया है कि 2 पॉइंट ए एंड बी है, जिसके बीच में से एक लाइन स्ट्रेट लाइन गया है और इसके बीच में एक पॉइंट सी आ रहा है। ये सिंपल बताया गया, फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ये बताया गया। सेकंड पोस्टुलेट्स में ये बताया गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मीन्स 3 पॉइंट है दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जब सेम लाइन में नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉलिनेट बोलते हैं। जब सेम लाइन में ही पॉइंट्स होगा तो उसको कॉलिनेट बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर मान लेते हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये सिंपल ये बताया गया पोस्टुलेट्स, फर्स्ट में ये बताया गया, सेकंड में ये बताया गया है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये बोलता है, सेकंड पोस्टुलेट्स ये बोलता है। अब इसमें इसके बेस में सम क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो था कि ए एंड 2 पॉइंट ए एंड बी पॉइंट के बीच में एक सी पॉइंट आ रहा था, तो इसमें क्या चीज़ को डिफाइन करना था। डिफाइन मीन्स दैट टर्म दैट यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट, समझाना पड़ेगा बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पोस्टुलेट। समझाने से पहले सम बेसिक टर्म्स, दैट मीन्स क्या चीज़ समझाना था कि पॉइंट समझाना था, क्योंकि दैट उस टाइम में पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पॉइंट, लाइन, प्लेन, एंगल, राइट। सो इसमें डिफाइन टर्म क्या करना था, पॉइंट को डिफाइन करना था और लाइन को डिफाइन करना था, एंड इवन द प्लेन ऑल्सो, एक प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ उसको भी डिफाइन करना था। वो इसमें भी सेम गोस है, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर पॉइंट को डिफाइन करना है, लाइन को डिफाइन करना है, प्लेन को डिफाइन करना है। सो दैट मीन्स दिस क्वेश्चंस डू हैव सम डिफाइंड टर्म्स, राइट। सो दैट इज व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज। फर्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है, हम लोग ने मैंने तुमको समझा दिया। आर दिस पोस्टुलेट कंटेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है क्या ये 2 पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब ये पोस्टुलेट अलग चीज़ बता रहा है, ये पोस्टुलेट अलग चीज़ बता रहा है। जब 2 ही डिफरेंट चीज़ सिचुएशन में यूज़ होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ सी है, यहाँ पर अलग चीज़ बताया गया कि पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट and these 3 points are not in the same line, so this is a different situation and this is a different situation, तो इसीलिए these 2 postulates are consistent। yes, do they follow from Euclid's postulates? मैं स्टार्टिंग में बोला था कि they do not follow from Euclid's postulates, क्योंकि Euclid postulates में हम लोग ये postulates नहीं देखे थे। Initially when I explained you that time I never talked about these postulates, so that means this doesn't comes in the Euclid geometry, Euclid's postulates ये नहीं आता। पर यहाँ पर हम लोग एक एक्सियम्स, बट हम लोग ने पोस्टुलेट के साथ साथ एक्सियम्स भी किया था। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक्सियम का यूज़ हो रहा है, एक्सियम 5.1। और 5.1 एक्सियम में क्या था 5.1 एक्सियम में 5.1 में ये बताया गया था, कोई भी 2 पॉइंट से कोई भी 2 फिक्स पॉइंट से हम एक लाइन पास कर सकते हैं। वी कैन पास अ सिंगल लाइन फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट। सो दैट मीन्स यहाँ 2 फिक्स पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, 2 फिक्स पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। दैट मीन्स ये 2 फिक्स पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, 2 फिक्स पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। दैट मीन्स ये 2 पोस्टुलेट्स जो है इसको बनाते समय वी कैन यूज़ एक्सियम 5.1। पोस्टुलेट्स तो नहीं है ऑब्वियसली, एग्जाम्स के पोस्टुलेट्स के अंदर नहीं आया, पर इसमें हम लोग एक्सियम 5.1 यूज़ कर सकते हैं। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। So now this is the first so now we have 4 number question, and 4 number question says that if a point C lies between 2 point A and B, अभी हम लोग ने देखा राइट, सेम क्वेश्चन है, डायग्राम से करने के लिए बोला है। तो बताया गया है कि ये एक लाइन है AB
और इसके बीच में पॉइंट सी आया, राइट। अब बताया गया सच दैट ऑलरेडी गिवन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, जो ए सी इक्वल्स टू बी सी ये इक्वल्स टू ये है, एंड मुझे प्रूव करने के लिए बोला है कि देन प्रूव दैट ए सी जो है इज़ हाफ ऑफ ए बी, पूरा का ए सी क्या हाफ है, मुझे प्रूव करना है विद ड्राइंग फिगर। सो वी हैव ड्रॉन द फिगर, सो वी नाउ नीड टू प्रूव इट, प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो गिवन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, ईजी होगा। गिवन क्या दिया गया है, गिवन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। So what we're gonna do now is that adding AC on both sides. Why I'm adding? I'm gonna tell you. Adding AC on both sides. So BC plus AC. सो यहाँ पर हम लोग एक एक्सियम पढ़े थे, वो एक्सियम का यूज़ किया गया है। वो क्या था, व्हेन इक्वल्स आर एडेड ऑन इक्वल साइड देन होल आर इक्वल। मीन्स जब इक्वल को हम लोग दो ही साइड में ऐड करते हैं देन में होल, इसका जो पूरा वैल्यू होगा पूरा वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि मैं ए सी यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, मत मीन्स इसका जितना पूरा वैल्यू होगा इसका पूरा वैल्यू सेम ही होगा। इसका मतलब सेम ही था, अगर मैं 5 kg है 5 kg में 2 kg ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 kg था 6 kg में 2 ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। मतलब नॉट 5 kg 5 kg मान लेते तो तब मतलब 5 kg स्टार्टिंग में 5 kg था, उसके बाद में 2 kg ऐड किया, यहाँ पर भी 2 kg किया, मतलब तब भी तो 7 kg 7 इक्वल्स दो वैल्यू सेम ही तो हुआ ना। तो ये बताया गया व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। यहाँ पर हम लोग एक्सियम का यूज़ किया गया है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल value is equal. When equals are added to equal then whole value is equal. So इसीलिए हम लोग ने वैल्यू ऐड किया। अब देखते हैं टू ए सी भी कितना, 2AC हुआ। अब AC प्लस BC देखो, वेट इज AC ये वाला वैल्यू प्लस BC ये वाला वैल्यू, ये दो वैल्यू को हम लोग A भी बोल सकते हैं, पूरा वैल्यू सॉरी ए बी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स को मैं ए बी लिख सकता हूँ ना। तो मुझे क्या निकालना था, ए सी प्रूफ करना था, ए सी मैं नहीं चला सकते, हाउ ए बी, सो प्रूव्ड। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, अंडरस्टूड आई थिंक। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सम डाटा लिया गया है। इट सेज दैट पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो बताया गया है कि जो एक लाइन था आगे ए बी और इसमें जो सी था दैट वाज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक लाइन सेगमेंट में इक्वल भाग में डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकता है, इसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द मिड पॉइंट। और बताया गया है कि मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, जितना भी लाइन सेगमेंट होगा उसका सिर्फ 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट होगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा बोल के मुझे प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे, सी सो प्रूव करने के लिए करते वक्त मुझे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। दैट एजम्पशन इज दैट आई नीड टू टेक 2 मिड पॉइंट्स। मुझे एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेना पड़ेगा कि एक लाइन सेगमेंट में 2 मिड पॉइंट होगा बोल के लेना पड़ेगा। ओके, लेट लेट्स कंसिडर लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ 2 मिड पॉइंट, दैट मीन्स सी एंड डी मान लेते हैं। मुझे ये 2 ही मिड पॉइंट है बोल के मैं एजम्पशन ले रहा हूँ और मेरा एजम्पशन का गलत हुआ, अगर मुझे अपना एजम्पशन को गलत प्रूव करना है, ठीक है। अगर आई एम रिपीटिंग, मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बताया गया है कि मुझे सी मिड पॉइंट होगा, पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होगा बोल के मुझे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं
दो मिड पॉइंट होगा। इसको मुझे अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो मेरा क्या इससे अल्टीमेटली क्या रीजन आउटकम आएगा, आउटकम ये आएगा कि एक कोई भी एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। ओके, मैंने क्या किया, लेट्स कंसीडर लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ टू मिड पॉइंट, जो क्या था सी एंड डी। ओके, अगर फर्स्ट हम लोग सी को मिड पॉइंट मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इफ सी इज द मिड पॉइंट दैट मीन्स व्हेन सी इज द मिड पॉइंट, व्हेन सी इज द मिड पॉइंट दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू डोंट, ये अभी डी को भूल जाओ, सिर्फ सी को मानो मिड पॉइंट, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, राइट। इसके आगे हम लोग ने देखा था, प्रूव किया था, दैट मीन्स ए सी या सी बी जो होता है पूरा का क्या होता है, हाफ होता है। दैट मीन्स ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकता हूँ, राइट। इसके आगे वाला क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया था। ओके, सो यहाँ पर कर रहा हूँ दूसरा वाला, when D is the midpoint, now when D is the midpoint, मैं क्या मान रहा हूँ, D को मिड पॉइंट मान रहा हूँ। D को मिड पॉइंट का C को भूल जाओ, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AD इक्वल्स टू DB। I guess you are understanding what I'm doing, okay। तो सेम सिनेरियो इट विल कम, दैट मीन्स AD विल बी हाफ ऑफ, AD जो होगा, AD का वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ AB, जो आगे हम लोग ने प्रूव किया था। और यहाँ तक रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे प्रूव करना था कि ये लाइन का सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नो इट हैज़ टू मिड पॉइंट। उसके हिसाब से मैंने फर्स्ट डाटा लिखा, अगर सी मिड पॉइंट होगा दैट मीन्स सी मिड पॉइंट हुआ तो AC और CB इक्वल्स टू होगा, दो लाइन इक्वल होगा लिखा, एंड ये जो लाइन होगा हाफ ऑफ इसका भी होगा लिखा। सिमिलर यहाँ पर डी इज द मिड पॉइंट, दैट मीन्स AD इक्वल्स टू DB, एंड जो AD होगा या DB होगा हाफ ऑफ पूरा लाइन का आधा होगा, ये भी लिखा। ओके, सो अब क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डाटा के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ पर देखो, यू गोना सी सम कॉमन, ये वाला देखो इक्वेशन, लेट्स कंसीडर इक्वेशन 1, लेट्स कंसीडर इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दो इक्वेशन को हम लोग इक्वल करें, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वैल्यू की इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AD इक्वल्स टू AC लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, समझ में आया होगा मैंने इक्वल क्यों लिखा, AD इक्वल्स टू AC क्यों इक्वल आया, क्योंकि यहाँ पर देखो हाफ ऑफ AC है, यहाँ पर हाफ ऑफ AB, दो ही हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, तो मैट मीन्स ये इक्वल हुआ, तो मैं ये वैल्यू को इक्वल लिख सकता हूँ, राइट। ओके, अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताएगा कि AD इज वैल्यू इज इक्वल्स टू AC, मतलब AD जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, AD जो है इज इक्वल टू AC के वैल्यू इक्वल है, क्या आपको लगता है, सी AD इतना आया, AC इतना है, ये इक्वल हुआ, ये दो लाइन क्या इक्वल है, सो नहीं, यहीं पे मेरा एडजस्टमेंट क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं है। यू कैन सी ओवर हियर, ये वैल्यू इक्वल तब होता जब ये सी और वेट, ये वैल्यू इक्वल तब होता AB, ये वैल्यू इक्वल तब होता यहाँ C था और यहाँ D था, राइट। AD इतना है, ये AD का वैल्यू है, और ये और AC इतना है, ये वैल्यू इक्वल तब होता जब ये दो ही पॉइंट एक ही जगह में आते, दो ही कहाँ पर आते, एक ही जगह में आते, तब जाके ये क्या होता, इक्वल होता। मतलब यहीं पर C है, यहीं पर D है, तब जाके इक्वल होता, तब जाके मैं बोल सकता AD इक्वल्स टू AC, राइट। एक ही जगह में अगर दो ही पॉइंट एक ही जगह में होते तब जाके इक्वल होता। तो अल्टीमेटली हमारा आउटकम क्या आया, देयरफॉर एनी लाइन सेगमेंट has only one मिड पॉइंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हुआ उसका सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। AD इक्वल्स टू AC, AD का वैल्यू इतना है और AC इतना है, दो इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल तभी होगा जब दो ही एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। नाउ वी गोना डू क्वेश्चन नंबर 6।
सो नाउ दिस इज़ द 6 नंबर क्वेश्चन एंड इसमें मुझे फिगर 5.10 दिया गया है, वो मैं भी बनाऊंगा। इसमें बताया गया है कि लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। ड्रॉ करते हैं। इस तरह का लाइन है जिसमें ए बी सी और डी दिया गया है एक कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन में, और मुझे बताया गया है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, और मुझे प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब हमको इसको कैसे करेंगे? सी ऑलरेडी जो वैल्यू दिया गया होगा ना उसको पहले आप लिख लीजिए। सो गिवन क्या है, व्हाट इज़ गिवन? गिवन इज़ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन है, मतलब अब इसी का कुछ ना कुछ यूज़ करके मुझे प्रूव करना पड़ेगा वो। सो अभी हम लोग करेंगे। सो ए सी करते, ए सी का मतलब ये वैल्यू है। ए सी ये पूरा जो लाइन आया कौन सा लाइन से, मतलब लाइन सेगमेंट से बना है। ए सी इज ए बी प्लस बी सी, राइट। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं, अब बी डी करते हैं। बी डी, अब बी डी के लिए क्या लाइन कनेक्टेड हो रहा है? बी सी प्लस सी डी। आई बिलीव यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी इट इज सेड इन द क्वेश्चन में बताया गया है कि ए सी बी डी क्या होगा? इक्वल होगा, वो बताया गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो वैल्यू को प्लेस कीजिए। ए बी प्लस बी सी, दिख रहा है सब कुछ? लेट मी सी। यस, सो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी डी को क्या लिख सकता हूँ? बी डी को बी सी प्लस सी डी। अब आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हेन इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल आर इक्वल। ये एग्जाम्स कौन सा है? कमेंट में बोलिए। ओके, व्हेन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, जब इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 5 से अगर मैं ये 5 था, यहाँ से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 वैल्यू से नहीं आएगा ना, ये बोल रहे हैं। सो कौन सा एग्जाम है? कमेंट में पिन करिए। ओके, सो यहाँ पर व्हेन हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग बी सी करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। सो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड। मैं बोथ साइड से क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट बी सी कर रहा हूँ। बी सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, तो बचा क्या? ए बी इक्वल्स टू सी डी। आई गेस मुझे यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी। सो दिस प्रूव्ड। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। तो हम लोग ने यूक्लिड ज्योमेट्री का पूरा मतलब लाइक theoretical part and even the exercise part we have completed, and ये अभी के नया सिलेबस में only you have up to here, so but in old version वाला में थोड़ा some exercise also added, so we'll do that afterward, but अभी new version का सिर्फ अभी मैं cover up कर रहा हूँ। So if you like this video, आपको ये चैनल अगर इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो यू कैन सब्सक्राइब, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू मेक सम वीडियोज़ ऑन सम अदर चैप्टर्स टू। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लगा, ये लेसन्स अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वॉट एवर द इम्प्रूवमेंट दैट आई नीड टू हैव, यू कैन टेल इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।